In today's lecture, we are going to start the new unit, that is Unit 2. Unit 2 is nuclear energy. In nuclear energy, we will start with the fundamental forces in universe. The fundamental forces are fundamental interaction. You can call it fundamental forces or fundamental interaction of physics are the ways that individual particles interact with each other. It turns out that every single interaction observed taking place in the universe can be broken down and described by only four types of interactions. यूनिवर्स में जितने भी पार्टिकल हैं, जितने भी एटम्स हैं, जितने भी कण हैं, वो आपस में एक दूसरे पर बल का प्रयोग करते हैं। तो यूनिवर्स में जो मेजरली चार तरीके के फोर्सेस लगते हैं, तो वो चार तरह के फोर्सेस हैं। पहला इज़ ग्रेविटी और यू कैन से ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकंड वन इज़ electromagnetism or you can say electromagnetic forces, and third one is weak interaction or weak nuclear force, and the last one is strong interaction or you can say strong nuclear forces. So these four types of forces are known as the fundamental forces. Those are present in the universe. Once again, I am repeating the fundamental forces, or you can call it fundamental interactions of physics, are the ways that individual particles interact with each other. It turns out that every single interaction observed taking place in the universe can be broken down and described by only four types of interactions. ठीक, तो there are four type of interaction. First one is gravity or you can say gravitational force. Second one is electromagnetic force, and third and fourth is weak interaction or weak nuclear force, and strong interaction or strong nuclear forces. Now I am going to explain all these forces in detail. So first one is known as gravity or the gravitational force. The gravity of the fundamental forces. Gravity has the farthest reach, but it is the weakest in actual magnitude. It is purely attractive force which reaches through even the empty void of space to draw two masses towards each other. It keeps the planets in orbit around the sun and the moon in orbit around the earth. Gravitation is described under the theory of general relativity, which defines it as the curvature of space-time around an object of mass. This curvature in turn creates a situation where the path of least energy is toward the other object of mass. होता क्या है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये दो मासेस या द्रव्यमान पिंडों के बीच लगने वाला एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है, आकर्षण बल होता है। दिस इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। ये जो है नेचर में अवेलेबल सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है, बट इट इज़ ऑफ लार्ज रेंज, लेकिन ये बहुत दूरी तक काम करता है। फारथेस्ट रीच मतलब लार्ज रेंज होता है, इसका रेंज जो है काफ़ी दूरी तक होता है। और इस बल के कारण ही पृथ्वी सूर्य के चारों ओर और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक, इट कीप्स द प्लैनेट्स इन ऑर्बिट अराउंड द सन एंड द मून इन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। और क्या होता है, ग्रेविटेशन
को जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से भी समझाया जा सकता है, जिनके अनुसार किसी भी द्रव्यमान पिंड के चारों ओर का स्पेस कर्व्ड होता है। ग्रेविटेशन इज डिस्क्राइब्ड under the theory of general relativity, which defines it as the curvature of space-time around an object of mass. This curvature in turn creates a situation where the path of least energy is toward the other object of mass. Means ग्रेविटेशन को जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से इस तरह समझाया जा सकता है जिसके अनुसार किसी भी मास या द्रव्यमान पिंड के चारों ओर का जो स्पेस वो कर्व्ड होता है। ठीक, तो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ फोर्स, दैट इज ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स। नाउ द सेकेंड इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में क्या होता है, ये फोर्स दो इलेक्ट्रिकल चार्जेस के बीच में काम करता है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स की तुलना में बहुत अधिक होता है और ये फोर्स अट्रैक्टिव और साथ ही साथ रिपल्सिव दोनों तरह का होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज द इंटरैक्शन ऑफ पार्टिकल्स विद एन इलेक्ट्रिकल चार्ज। Charge particle at rest interact through electrostatic forces. While in motion, they interact through both electrical and magnetic forces. ये जो फोर्स होता है ये इलेक्ट्रिकल चार्जेस के बीच लगता है और ये ग्रेविटेशनल फोर्स की तुलना में अधिक होता है और ये अट्रैक्टिव और रिपल्शन दोनों तरीके का होता है। ठीक है, For a long time, the electric and magnetic forces were considered to be different forces, but they were finally unified by James Clerk Maxwell in 1964 under Maxwell equations. In the 1940, quantum electrodynamics consolidated electromagnetism with quantum physics. Electromagnetism is perhaps the most prevalent force in our world, as it can affect things at a reasonable distance and with a fair amount of force. मोटा मोटा ये हो गया कि जब चार्ज स्टैटिक पोजीशन में होता है, या इसको कह सकते हैं जब आवेश स्थिर होता है, स्टैटिक होता है, तो उनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है, और जब गति में होता है तब मैग्नेटिक या विद्युत और चुंबकीय बल दोनों काम करते हैं। तो शुरू में क्या था कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स जो है अलग अलग फोर्सेस की तरह हम लोग कंसीडर करते थे, लेकिन बाद में जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने एक अपने बट दे वेयर फाइनली यूनिफाइड बाय जेम्स क्लार्क मैक्सवेल इन 1964। दोनों को मिक्स कर दिया जेम्स मैक्सवेल ने 1964 में अंडर मैक्सवेल इक्वेशन। एंड इन 1940s quantum electrodynamics consolidated electromagnetism with quantum physics. Electromagnetism is perhaps the most prevalent force in our world, as it can affect things at a reasonable distance and with a fair amount of फोर्स। तो मेन चीज़ क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि ये जो फोर्स होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होते हैं, ये दो इलेक्ट्रिकल चार्जेस या जिसको आप विद्युत आवेश कहते हैं उनके बीच में कार्य करता है। यह ग्रेविटेशनल फोर्स की तुलना में बहुत अधिक होता है और ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव मीन्स आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण दोनों तरह का होता है। और जब चार्जेस स्टैटिक होते हैं, जब आवेश स्थिर होते हैं, तो उनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है, और जब वो मोशन में होते हैं, जब आवेश गति में होता है, तब इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक दोनों फोर्स काम करते हैं, विद्युत और चुंबकीय बल दोनों काम करते हैं। तो दिस वाज द
second type of force, that is electromagnetism या electromagnetic force. Now the third one is weak interaction, or you can say weak nuclear forces. तो वीक न्यूक्लियर फोर्सेस में क्या होता है, ये एक बहुत ही पावरफुल फोर्स है जो न्यूक्लियस के अंदर कार्य करता है, और ये फोर्स न्यूक्लियस के भीतर बीटा पार्टिकल के डिके का कारण बनता है. ठीक, तो वीक इंटरैक्शन और वीक न्यूक्लियर फोर्सेस is a very powerful force that acts on the scale of the atomic nucleus. It causes phenomena such as beta decay. ये क्या है, अतः करता है न्यूक्लियस के अंदर जो है बीटा पार्टिकल के डिके इसकी वजह से होते हैं. It has been consolidated with electromagnetism as a single interaction called the electroweak interaction. The weak interaction is mediated by the W boson. There are two types, the W plus and W bosons, and also the Z boson. तो ये इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. Main thing is the weak interaction is a very powerful force that acts on the scale of the atomic nucleus, and it causes a phenomena such as beta decay. These are the important points related with weak interaction और weak nuclear forces. Means ये फोर्स जो होता है बहुत पावरफुल है, जो न्यूक्लियस के अंदर काम करता है, और ये फोर्स न्यूक्लियस के भीतर बीटा पार्टिकल के डिके या क्षय का कारण बनता है. वीक इंटरैक्शन की वजह से ही बीटा डिके होता है. तो नाउ दिस वाज द third type of force. Now the fourth one is strong interactions, or you can say strong nuclear forces. The strongest of the forces is the aptly named strong interaction, which is the force that among other things keep nucleons means proton and neutrons, दोनों को combine करके बोलते हैं nucleons, which is force that among the things keeps nucleons, that is proton and neutrons, bound together in the helium atom. For example, it is strong enough to bind two protons together even though their positive electrical charges cause them to repulse each other. मतलब क्या हुआ, this is the strongest force in nature. ये न्यूक्लियस के भीतर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच, प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच काम करने वाला बहुत ही पावरफुल अट्रैक्टिव फोर्स होता है. ठीक है, और ये फोर्स न्यूक्लियंस को आपस में बांधे रखता है. होता क्या है कि भाई प्रोटॉन अगर बांध के रख रहा है, मतलब प्रोटॉन दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो हम जानते हैं जब सेम चार्ज होंगे तो बीच में रिपल्सिव फोर्स लगता है, तो रिपल्शन होना चाहिए, तो प्रोटॉन छटक जाने चाहिए. लेकिन स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन की वजह से, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से प्रोटॉन बंध के एक साथ रहते हैं. प्रोटॉन न्यूट्रॉन बंध के, न्यूट्रॉन बंध के, इस तरीके से इसका मेन पर्पस जो है ये न्यूक्लियंस को बाउंड करके रखता है. तो दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, और ये न्यूक्लियस के अंदर क्या करता है, न्यूट्रॉनों के बीच, न्यूट्रॉन के बीच, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच, प्रोटॉन के बीच कार्य करने वाला बहुत ही पावरफुल अट्रैक्टिव फोर्स होता है. बहुत ही अत्यंत शक्तिशाली आकर्षण बल होता है. और इस फोर्स को, और ये क्या करता है, ये फोर्स न्यूक्लियंस को आपस में बांधे रहता है. न्यूक्लियंस मीन्स न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन. तो दीज आर द 4 फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ यूनिवर्स. ठीक है, तो नाउ we are going to discuss the next topic of this unit, that is atomic theory. ठीक, तो atomic theory is a scientific theory of the nature of matter which states that matter is composed of discrete units called atom. ठीक, जो भी मैटर होता है वो बहुत सारे एटम से मिलकर बना होता है.
The atom consists of a small but massive nucleus surrounded by a cloud of rapidly moving electrons. The nucleus is composed of protons and neutrons. आप सभी लोगों ने 9-10 से ही ये पढ़ते चले आ रहे हैं। हर एटम के बीच में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के चारों ओर जो चक्कर लगा रहे होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर हमारा जो न्यूक्लियॉन्स होता है वो होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इज द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है दैट इज इक्विवेलेंट टू एटॉमिक नंबर, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जब जोड़ देते हैं तो दैट इज होता है एटॉमिक मास। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्विवेलेंट टू एटॉमिक नंबर, एंड addition of sum of neutron and proton available in nucleus is equivalent to atomic mass. ठीक, the atomic number of the atom and is given by the symbol Z. The total electrical charges of the nucleus is therefore plus Ze, where E is a elementary charge equals to 1602 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम। ये 10 -19 नहीं है, इट इज 10 टू द पावर -19 कूलाम। इन ए न्यूट्रल एटम देयर आर एज मैनी इलेक्ट्रॉन एज प्रोटॉन मूविंग अबाउट न्यूक्लियस। तो एक न्यूट्रल एटम जो होता है उसमें जितनी प्रोटॉनों की संख्या न्यूक्लियस में होती हैं उतने ही उसके ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी होती है। It is the electrons that are responsible for the chemical behavior of atom and which identify the various chemical elements. हर एटम का जो बिहेवियर होता है वो इलेक्ट्रॉन पे ही निर्भर करता है, और जो केमिकल रिएक्शन भी करते हैं तो आउटर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हर एटम के, उन्हीं से केमिकल रिएक्शंस होते हैं। Protons and electrons are charged particle, whereas neutrons are अनचार्ज पार्टिकल। ये सभी लोग लगभग जानते हैं कि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होते हैं, एंड न्यूट्रॉन्स आर अनचार्ज पार्टिकल्स। Protons have a positive charge whereas electrons are negatively charged. Neutrons are neither negatively charged nor positively charged. A neutral atom is the one which has an equal number of protons and the neutrons. ठीक, the positive charge of proton cancels the negative charge of electron and makes the atom neutral. जो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन के होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स के जो निगेटिव चार्ज होते हैं उनको कैंसिल कर देते हैं, उस वजह से एटम क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। बट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम ऑफ ए पर्टिकुलर एलिमेंट में वेरी, लेकिन जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस में कुछ एटम में वो वेरी कर सकते हैं। सच एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट that have different number of neutrons are known as isotopes of that element. ऐसे एटम्स जिनके ऐसे एलिमेंट जिनके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या बदलती रहती है वो उस एलिमेंट के बदले हुए न्यूट्रॉनों के साथ आइसोटोप्स कहलाते हैं। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में, हीलियम का आइसोटोप पढ़ेंगे हम, और भी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। नाउ ये आप देख सकते हो कि इसमें दिया हुआ है मासेस इन किलोग्राम, यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट्स एंड एनर्जी लेवल। ठीक है, तो इसमें आप इसमें ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, आप उससे पीपीटी से पढ़ लीजिएगा। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। द थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, the understanding the structure of the atomic nucleus is one of the central challenges in modern nuclear physics. Then what is nuclear structure? As everybody know, nuclear structure, the nucleus contains
two types of bodies, namely protons and neutrons. ठीक, तो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसी को फिर से ये डिस्क्राइब कर रहा है। न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूक्लियस में हमारा न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है, और जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, ये न्यूक्लियर फोर्सेस की वजह से इंटैक्ट रहता है न्यूक्लियस में। द न्यूक्लियस कंसिस्ट न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, और जो न्यूक्लियर फोर्सेस होता है वो क्या करता है? न्यूक्लियस को बाउंड करके रखता है। तो जो न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं उनकी वजह से प्रोटॉन जबकि दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं, तो बहुत सारे प्रोटॉन एक साथ इंटैक्ट रहते हैं। ऐसे ही ये न्यूक्लियर फोर्स न्यूट्रॉन के बीच में लगता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में लगता है। तो इन फिजिक्स इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस एंड रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। These orbits are also known as energy level। तो न्यूक्लियस के अंदर तो हमारा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हो गया, और न्यूक्लियस के बाहर जो ऑर्बिट्स होते हैं उसमें हमारे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं, एंड दीज ऑर्बिट्स को हम एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं। ठीक, तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर मच हैवियर कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स। जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में उनका मास बहुत ज़्यादा होता है, वो हैवी होते हैं। तो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन कंबाइंड आर नोन एज न्यूक्लियॉन्स। द मास ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस इज नेग्लिजिबल when compared to the mass of protons and the neutrons। तो जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस में ऑलमोस्ट निग्लिजिबल होता है अगर उसको कंपेयर करें फ्रॉम मासेस ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो न्यूक्लियस इज एक्सट्रीमली स्मॉल इन साइज एंड वेरी वेरी डेंस इन कंपैरिजन टू द रेस्ट ऑफ द एटम। तो हर किसी एटम में जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस बहुत डेंस होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे प्रोटॉन और बहुत सारे न्यूट्रॉन होते हैं। तो यही एक हमारा न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियर स्ट्रक्चर में क्या हो गया हमारा? न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, न्यूक्लियर के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं उसमें बहुत सारे प्रोटॉन्स और बहुत सारे न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन हमारे पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, न्यूट्रॉन्स हमारे न्यूट्रल होते हैं। और न्यूक्लियस के जो बाहरी ऑर्बिट होता है उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन्स जो ऑर्बिट में घूम रहे होते हैं उनको हम एनर्जी लेवल भी कहते हैं। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट द साइज ऑफ ए न्यूक्लियस ऑफ एक्सट्रीमली लेस as compared to the remaining part of the atom, most of the mass of the atom is concentrated in the nucleus. It is due to the fact that both neutrons and protons are present within the nucleus and together constitute the mass of the atom. In spite of the fact that the size of the nucleus of extremely less as compared to the remaining part of the atom। ठीक है, तो इसका कारण मेन यही है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ होते हैं? हमारे न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। दैट्स वाई मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम इज कंसनट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का जो मैक्सिमम मास होता है वो कहाँ पे होगा? वो न्यूक्लियस में होगा, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। अब द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नॉट काउंटेड as it is negligible in comparison to that of protons और न्यूट्रॉन्स। तो जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसको हम कभी काउंट नहीं करते हैं, बिकॉज इट इज़ ऑलमोस्ट निग्लिजिबल इफ़ वी कंपेयर द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद द मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। सो we don't consider the mass of electrons. Thus, for all practical purposes, the mass of the atom is taken as the sum of the masses of the protons and न्यूट्रॉन। इसीलिए जब हम एटॉमिक मास बताते हैं तो उसमें हम इलेक्ट्रॉन्स का मास नहीं ऐड करते हैं। जनरली हम क्या करते हैं? एटॉमिक मास हम बताते हैं कि एटॉमिक मास इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, एंड एटॉमिक नंबर जो होता है, एटॉमिक नंबर इज इक्विवेलेंट टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो इसीलिए हमारा एटॉमिक नंबर सेम रहता है और एटॉमिक मास चेंज होता रहता है आइसोटोप्स का। क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉनों की संख्या घटती बढ़ती रहती है आइसोटोप्स में। ठीक, नाउ फ्रॉम दिस डायग्राम यू कैन से इफ एन एटम साइज इज 10 to the power -8 सेंटीमीटर, तो न्यूक्लियस साइज विल बी अराउंड 10 to the power -12 सेंटीमीटर, एंड इलेक्ट्रॉन साइज इज
is less than 10 to the power minus 18 centimeter, where proton and neutron size is 10 to the power minus 13 centimeter. So this is the एटॉमिक स्ट्रक्चर थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। तो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर की थ्योरी में क्या हुआ कि कोई भी एटम है उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगा रहते हैं। तो जो जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं उनको एनर्जी लेवल भी कहते हैं। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन्स का मास और वो निग्लिजिबल मान के चलते हैं, इसीलिए जो एटम का मास होता है एटॉमिक मास दैट इज इक्वलेंट टू न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन, और जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज इक्वलेंट टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो दिस इज द थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। नाउ व्हाट इज न्यूक्लियर फोर्सेस, हम शुरू में भी हम डिस्कस कर चुके हैं अबाउट द न्यूक्लियर फोर्सेस। तो न्यूक्लियर फोर्सेस आर वन ऑफ द 4 बेसिक forces of nature. These are also known as strong forces. Within the nucleus, protons repel each other since there is a force of repulsion between like charges. To overcome this repulsive force of positively charged protons and bind the nucleus together, a strong attractive force is required. This force is known as न्यूक्लियर फोर्स। जैसा मैंने आपको बताया था, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन होते हैं, चूँकि सारे प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज हैं, तो 2 पॉजिटिवली चार्ज के बीच में क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स लगता है। लेकिन इस रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम कर देता है स्ट्रॉन्ग फोर्स लाइक न्यूक्लियर फोर्स, जिसकी वजह से प्रोटॉन एक साथ इंटरैक्ट होकर रहते हैं और ये न्यूक्लियस को भी बाउंड करके रखता है। तो न्यूक्लियर फोर्स आर वन ऑफ द 4 बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर। दे आर ऑल्सो नोन एज स्ट्रॉन्ग फोर्सेस। Within the nucleus, protons repel each other since there is a force of repulsion between like charges. To overcome this repulsive force of positively charged protons and bind the nucleus together, a strong attractive force is required, and this force is known as nuclear force. So nuclear force is a very strong force which binds the protons and neutrons together to form a very small nucleus. The force that controls the motion of the electrons of the atom is known as the electromagnetic force. जो फोर्स इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को कंट्रोल करता है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो हमने जो 4 फोर्सेस पढ़े थे, तो उसमें जो न्यूक्लियर फोर्स पढ़ा था, तो न्यूक्लियर फोर्स का मेन काम है प्रोटॉन के बीच जो रिपल्सिव फोर्स लग रहा होता है उसको ओवरकम करना। उसको बजाय वो क्या करता है, एक सेम काइंड ऑफ चार्जेस को बाउंड करके एक साथ रखता है और न्यूक्लियस को पूरा बाउंड करके रखता है। प्लस अब न्यूक्लियस के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, तो उनको जो उनके मोशन को जो कंट्रोल करता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स करता है। द न्यूक्लियर फोर्स आर ऑफ शॉर्ट रेंज एंड एक्ट विद इन द रेंज ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियर फोर्स का जो रेंज होता है वो बहुत ही कम होता है, सिर्फ वो न्यूक्लियस के अंदर ही काम करता है। देयर इन्फ्लुएंस डज नॉट एक्सटेंड वेरी फार बियॉन्ड द न्यूक्लियर बाउंड्री एंड दस डज नॉट इंटरफेयर विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो जो न्यूक्लियर फोर्स होता है उसका जो काम होता है वो सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर होता है। वो इतना शॉर्ट रेंज होता है, उसकी रेंज सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर होगी, न्यूक्लियस के बाहर नहीं होगी। इसलिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को कंट्रोल करता है, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पे न्यूक्लियर फोर्स का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता है। तो दिस इज़ द डायग्राम ऑफ, यू कैन सी न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में इसमें न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, जो मैंने पहले बताया था। ठीक, तो नाउ दिस इज़ द एंड ऑफ दिस लेक्चर। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, nuclear energy and something more related with nuclear force and the nuclear radioactive decay. We will discuss 3 kind of radioactive decay
in the next lecture. These are alpha decay, beta decay and gamma decay.